Good morning, guys. Now, next topic of chapter 3 is when goodwill is already appears in the book and new partner brings his share of goodwill premium in cash. The entry will be old partner already appears in the books. It means the goodwill is given in balance sheet. That means that goodwill already appears in the books. यानी यदि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल दी हुई हो तो सबसे पहले हमें उसे राइट ऑफ करना होता है और राइट ऑफ करने के लिए हमें एंट्री करनी होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट. रिमेंबर दिस गुडविल विल बी राइट ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी जो ऑलरेडी गुडविल दी हुई है और पुराने पार्टनर में ही ये बांटी जाएगी उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. और इसके बाद नया पार्टनर यदि गुडविल लेके आता है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह होगा वो आप इस इलस्ट्रेशन से देख सकते हैं. आरती एंड भारती आर पार्टनर इन ए फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. They admit Srishti as a new partner. The new profit sharing ratio will be 2:1:1. So we have to first calculate the sacrificing ratio. Sacrifice ratio formula is old ratio minus new ratio. Because we will distribute the goodwill bring by new partner in sacrificing ratio. Srishti brought 1 lakh for his share of goodwill. Goodwill already appears in the books of Aarti and Bharti 60,000. इसका मतलब बैलेंस शीट में हमें ऑलरेडी 60,000 रुपए की गुडविल दी हुई है और सृष्टि नई पार्टनर है वो 1 लाख रुपए की गुडविल लेके आ रही है. तो व्हाट विल बी द एंट्री? फर्स्ट वी विल पास द जर्नल एंट्री which have already been appeared in the books. It means we will write off the goodwill. Entry will be Aarti capital account DR, Bharti capital account DR to goodwill account. Already exist goodwill will be distributed in old profit sharing ratio, that is 3:2. 36,000, 24,000 and goodwill will be credited by 60,000. Now second entry will be new partner Srishti brings goodwill rupees 1 lakh, bank account DR to premium for goodwill 1 lakh, and we will distribute this goodwill among old partners whether question tells us or not. This entry is essential. यानी अगर क्वेश्चन कहे या न कहे हमें गुडविल तो ओल्ड पार्टनर्स में बांटनी ही होगी. बट दिस गुडविल विल बी distributor among old partner in sacrificing ratio. The entry will be premium for goodwill account DR 1 lakh to Aarti's capital 40,000 and to Bharti's capital 60,000. You can see in working note that old ratio minus new ratio, that is 3/5 minus 2/4 equals to 2/20, and for Bharti 2/5 minus 1/4, that is 3/20. It means goodwill will be distributed in the ratio of 2:3. Now sometime new partners does not bring his share of goodwill or premium in cash. वो कैश में नहीं लेके आता है, केवल कैपिटल ले आता है. तो ऐसी कंडीशन में what will be the treatment of goodwill? According to AS 26, हम लोगों ने 11th में पढ़ा थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर AS 26, if any new partners does not bring goodwill, then
goodwill can be recorded in the books only when consideration in money worth has been paid for it. It means that purchase goodwill can be recorded in the books. यदि पुराने पार्टनरों ने कोई गुडविल कैश में खरीदी है तब तो उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, बट नया पार्टनर यदि कोई गुडविल लेके आता है तो वी विल नॉट शो इन दी बैलेंस शीट. At the time of admission, retirement and death of a partner, or in case of change in profit sharing as exist partners, goodwill cannot be raised in the books of the firm. यदि कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आता है एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की स्थिति में जो एग्जिस्ट पार्टनर गुडविल लेके आते हैं उसकी एंट्री बैलेंस शीट में, उसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए कोई कंसीडरेशन बिजनेस के द्वारा नहीं दिया गया है. इट विल बी नॉन परचेज गुडविल एंड नो कंसीडरेशन मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट. व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म evaluated and the new partners did not bring his share of goodwill in cash, goodwill should be adjusted through partner capital account. For this purpose, new partner's current account is debited for his share of goodwill and old partner capital account are credited in their sacrificing ratio. इसका मतलब यह है कि जब गुडविल कैश में नहीं लेके आता, कैश में लेके आता है गुडविल, तो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल और फिर उसको हम ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते थे. लेकिन जब कैश लेके नहीं आएगा तो ये एंट्री नहीं होगी और इसकी जगह एक एंट्री होगी, उसमें न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल को नहीं. जब भी गुडविल का कोई ट्रीटमेंट होगा तो वी विल, यानी हमको अलग से करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो वी विल डेबिटेड न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, उसका जितना गुडविल का शेयर है उससे, एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में हम उसे बांट देंगे. ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटी जाएगी. इट इज इंपॉर्टेंट दैट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट so that his capital is not reduce, remain intact. इसको आप नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं. A, B are partners 3:2. They admit C into partnership 1/4 in future profits. The new profit sharing ratio is to 5:4:3. So you have new ratio and old ratio. So we have to calculate sacrificing ratio. Old ratio minus new ratio is equal to sacrificing ratio. C brings into business 50,000 for capital but could not bring amount for goodwill. The goodwill of C's admission, the firm's goodwill of C's admission was valued at 48,000. देखिए इस क्वेश्चन में और पुराने क्वेश्चनों में फर्क है. पुराने क्वेश्चन में तो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो हम उतनी ही राशि को ओल्ड पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देते हैं. यहाँ पर जो गुडविल दी गई है वो गुडविल लेके नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो गुडविल दी गई है दैट इज फर्म्स गुडविल. ये फर्म की गुडविल है, तो हमें सबसे पहले सी, फर्म की गुडविल 48,000 है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे और वो होगा 48,000 1/4 के लिए ये है. तो ऐसी कंडीशन में सी 12,000 रुपये ही गुडविल लेकर आता, लेकिन वो लेकर कैश में नहीं आया. तो व्हाट विल बी द एंट्री, पहली एंट्री बैंक अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल एज यूजुअल, जैसे हम करते हैं 50,000, और गुडविल का अमाउंट 12,000 रुपये मैंने आपको बताया निकाल लिया. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. रिमेंबर दिस. So that second entry will be C's current account DR 12,000 to A's capital 8,800 and B's capital 3,200. Sacrificing ratio, old ratio minus
new ratio. Next, please see the example number 36. Cake and muffin are partners sharing profit and loss in the ratio is to 5:4. On 1st April 2016, they admit Cookie as a new partner for 1/6 of share profit in the firm. The new profit sharing ratio is to 3:2:1. ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले प्लीज कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Here in this question, goodwill at the time of Cookie's admission is valued on the basis of capitalize of average profit method of last 3 years. Profit for last 3 years were ये. हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए डिफरेंट मेथड पढ़ ली ऑलरेडी, तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड हमको गुडविल निकालनी है. कैसे गुडविल निकलेगी? 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, फर्स्ट 2014 का दिया 39,000, इसमें एबनॉर्मल लॉस 9,000. एबनॉर्मल लॉस विल बी एडेड इन द प्रॉफिट. 2015 में 83,000 include abnormal gain, it will be deduct from this profit, and for 2016 72,000. On 1st April 2016, the firm assets were 8 lakh, it credited amount 3,60,000, the firm reserve 40,000 while partner capital balance show 4 lakh. The normal rate of expected is 13%. Cookie brings 2 lakh for her capital but unable to bring in cash for share of goodwill. तो क्या क्या ट्रीटमेंट होगा वो आप सबसे पहले देखें. सबसे पहले तो हमने गुडविल निकाल ली, जैसा मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल लॉस को जोड़ लिया, उसको घटा दिया, तीनों को जोड़ लिया, 1,95,000 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट बिकम 65,000. नाउ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला इज एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन NRR into 100. 65,000 अपॉन 13 ये क्वेश्चन में दिया हुआ इंटू 100 इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज. नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें नहीं दी हुई है, तो हम निकाल लें टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज. टोटल एसेट्स हमको इसमें दिए 8 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज दिए 3,60,000 इक्वल्स टू 4,40,000. नाउ गुडविल विल बी, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ गुडविल? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स. तो हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकाली थी 5 लाख, नेट एसेट्स हमने निकाली 4,40,000. द गुडविल विल बी 60,000. This goodwill is firm's goodwill, not Cookie's goodwill. So we will calculate the share of goodwill of Cookie. So 60,000 multiplied by 1/6 equals to 10,000 will be the share of goodwill of Cookies. इस 10,000 को हम sacrificing ratio में बांट देंगे. What will be the entry? बैंक अकाउंट DR to Cookies capital 2 लाख रुपए कैश लेके आ रहा है, हमने उसको 2 लाख रुपए को इसको क्रेडिट कर दिया, और ये गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा, तो कुकीज करंट अकाउंट दिया 10,000, टू केक कैपिटल 33,033 एंड टू मुफिन कैपिटल 6,667 रुपी. दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज वी कैलकुलेट 1:2. Now, next topic, when goodwill already appears in the books and new partner does not bring his share of goodwill premium in cash. यानी अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है गुडविल, तो हम सबसे पहले उसको राइट ऑफ करेंगे, और अगर पार्टनर प्रीमियम और गुडविल कैश में लेके नहीं आया तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे.
In this illustration, X and Y partner profit sharing ratio 5:3. They admit Z. The new profit sharing ratio is to 4:3:2. Z brought 1 lakh in cash for capital but could not bring any amount of goodwill for cash. The firm goodwill on Z admission was 1,80,000. ये 1,80,000 गुडविल फर्म के जब जेड को एडमिशन तब दिया, तो हम जेड का हिस्सा निकालेंगे. इट इज फर्म्स गुडविल. अगर देखिए क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखें, अगर पार्टनर नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का अमाउंट ला रहा है तो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जहां फर्म गुडविल दे दी वहां पहले आपको नए पार्टनर का हिस्सा निकालना होगा. तो यहां पर हम कर देंगे 1,80,000 इंटू 2/9 और उसके अकॉर्डिंग हमारी इसकी गुडविल हो जाएगी 20,000 रुपया. X and Y decided that Z can bring his share or premium goodwill later or it can be adjusted against the share of profit. At the time of Z's admission, goodwill exists in the books of firm 2,40,000. यानी इस 2,40,000 रुपए को हम सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे और इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो X कैपिटल DR 1,50,000, Y कैपिटल 90,000 and 2 goodwill account. It will be distributed among existing partner in 5:3 ratio. Next entry will be bank account DR to Z's capital 1 lakh. और मैंने आपको बताया कि 2/9 of 1,80,000 that is 40,000. Instead, I earlier told you that it will be 20, but it will be 40,000, and it will be distributed in the ratio of 13:3. Sacrificing ratio, old ratio minus new ratio. Old ratio X का 5/8 minus new ratio 4/9 equals to 13/72 is to new sacrificing ratio of X. Y sacrificing ratio 3/8 minus 3/9 equals to 3/72. So sacrificing ratio will be 13:3 and goodwill will be distributed among old partner in this ratio. Next, illustration number 38. George and Henry are partner profit sharing ratio 3:2. They decide to admit David as new partner, share future profit and loss equally. It means the new profit sharing ratio of all partner is to 1:1:1. हर क्वेश्चन को बिल्कुल तसल्ली से पढ़ें और देखें कि क्या अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसने लिख दिया इक्वली. It means 1:1:1. David brings 50,000 capital. Goodwill of the firm valued 60,000. Recorded necessary journal entry. In first case, when goodwill not appears in the books, there will be only 2 entries. First, for bringing capital to bank account DR to debit capital 50,000. And second, 60,000 firm की goodwill है, इसका 1/3 शेयर निकाल लेंगे, that is 20,000, and it will be distributed in sacrificing ratio, that is 4:1. Entry will be debit current account DR to George capital and to Henry capital 60,000 and 4,000. In second question, goodwill appears in the books 50,000. First, अगर goodwill will be appear in the books of the first bank account DR to debit bank account DR to debit capital, ये तो वैसे की वैसी सेम हो जाएगी. जो ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट है उसकी एंट्री होगी, क्योंकि राइट ऑफ करना है. ये ओल्ड शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगी. जॉर्ज कैपिटल अकाउंट DR 30,000, हेनरी capital account DR 20,000 to goodwill 50,000, and third entry will be remain same, that is for 20,000 rupees debit capital current account DR 20,000 to George capital to Henry capital 60,000 and 4,000 respectively. And in next case goodwill will appear 1,00,000 रुपया, तो हम
1,00,000 रुपए को पहले राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में इन ऑल देयर शेयरिंग रेशियो, एंड दोनों एंट्रियां बाकी ऊपर वाली रिमेन सेम हो जाएगी। नेक्स्ट, when the new partner brings only part of share of goodwill or premium, यानी वो कैपिटल लेके नहीं आ रहा, केवल प्रीमियम की राशि लेके आ रहा है। A and B are partner, 3:2 profit sharing ratio. They admit C for 1/4 of profit. He takes 1/6 from A and 1/12 of B. तो 3/2 और 3:2 में से पहले 3/5 माइनस 1/6 कर देंगे A से, और 2/5 माइनस 1/12 कर देंगे B से। Then it will be new profit sharing ratio. C brings 50,000 as goodwill. Out of his share 90,000. No goodwill appears in the books of account past necessary entry. यानी फर्म की गुडविल 90,000 है लेकिन वो 50,000 लेके आ रहा है, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 कर दी हमने, एंड व्हाट विल बी दी, तो टोटल 90,000 गुडविल है, 50,000 तो लेके आ गया। तो अब आप इसमें देखिए कि सेकंड जो एंट्री की जाएगी दैट विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000, सीज करंट अकाउंट DR जो सी लेके आ रहा है 40,000 रुपया, वो 40,000 टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। दिस एंट्री विल बी मेड this is the last illustration for today's topic. Illustration number 41. A, B partner profit equally. They admit C into partnership. C pays 60,000 for premium out of his share of premium. 1,08,000 में से वो 60,000 रुपया प्रीमियम दे रहा है for 1/5 of share of profit. She paying only 60,000 out of his, यानी उसके 1,08,000 में से वो 60,000 दे रहा है अभी। 1/4 profit sharing. Goodwill appears in the books 3 लाख रुपया। तो सब फर्स्ट वी विल राइट ऑफ दिस गुडविल which already appears in the books, that is 3 lakh. A's capital account DR, B's capital account DR, because to goodwill account it will be distributed in 1:1 because old ratio profit sharing ratio is equal. Now what will be the second entry? Second entry, bank account DR to premium for goodwill 60,000, ये तो नगद लेके आ गया। टोटल 1,08,000 में से 60 नगद लिया आया, तो 40,000 रुपया रह गई हमारे को। तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR दोनों 1,08,000 रुपया ही हम ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो व्हाट विल बी दी एंट्री? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो इसने नगद लेके आया 60,000, जो लेके नहीं आ सका 48,000, उसके लिए हम सीज करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। चूंकि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 है, तो 54,000 इक्वली। सॉरी, लास्ट वन, इलस्ट्रेशन नंबर 42. A, B partner profit and loss 4:1. They admit C 1/6 share, which he pays 20,000 for goodwill. A, B, C decide future profit 3:2:1. First entry will be bank account DR 20,000 to premium for goodwill 20,000. What will be the next? Premium for goodwill account DR 20,000, B's capital DR 16,000 to A's capital. यहां पर देखिए आप, यहां पर C अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है, उसको तो डेबिट कर दी, लेकिन यहां हमने B के कैपिटल को भी डेबिट किया। इसलिए क्योंकि यहां पर जब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला तो B इज गेनिंग पार्टनर, नॉट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।
तो वो 4/30 से गेन कर रहा है, तो हम 20,000 इंटू 4/30 और कर देंगे, तो उससे ये अमाउंट निकलेगा 16,000, यानी 16,000 बी को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेन हो रहा है, तो वो इतना रुपया गुडविल के रूप में ओढ़ लाएगा। एंड एंटायर अमाउंट विल बी पेड टू एज कैपिटल बिकॉज ही सेक्रीफाइस 9/30 अकाउंट, 9/30, तो ही विल ओनली गेट द गुडविल अमाउंट, ओनली ए सेक्रीफाइस द शेयर to the benefit B or C. Consequently, not only goodwill brought by C will be credited to A, B must also give 4/30th share of goodwill to A. The total value of goodwill, हमारी total value firm की कितनी हो जाएगी goodwill? 20,000 into 6/1, 1/6 के लिए 20,000, तो फर्म की गुडविल निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 6/1, टोटल हो गया 1,20,000, और 1,20,000 का 4/30 ये गेन कर रहा है, तो ही विल ब्रिंग 16,000 एज गुडविल अमाउंट। थैंक यू वेरी मच। आई विल गिव यू क्वेश्चन सेपरेटली। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।